नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय RLK नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से RLK नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। यहाँ रोल, सूप, मोमो, इंडियन डिशेस, तंदूरी वेज, मशरूम, बिरयानी, रोटी, चाउमीन, हक्का नूडल्स सभी उपलब्ध है। 3 किलोमीटर के दायरे में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। बीते कुछ महीनों से केंद्रीय जांच एजेंसी CBI और ED द्वारा आसनसोल शिल्पांचल में कोयला तस्करी के मामले में गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि कैसे बुधवार को CBI के शिकंजे में ECL के 7 अधिकारी आ गए, जिनमें पूर्व और वर्तमान मिलाकर 4 जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारी भी हैं। CBI द्वारा हिरासत में लिए गए ECL अधिकारी हैं अभिजीत मलिक, सुशांत बनर्जी, तन्मय दास। ये सभी ECL के विभिन्न एरिया के GM रह चुके हैं। वहीं एक वर्तमान GM SC मोइत्रा को भी CBI द्वारा हिरासत में लिया गया है। CBI द्वारा हिरासत में लिए गए अन्य अधिकारियों में एक मैनेजर स्तर के अधिकारी मुकेश शर्मा और 2 सुरक्षा गार्ड देवाशीष मुखर्जी तथा रिंकू बेहरा भी हैं। आपको बता दें कि इन सभी से बुधवार को कोलकाता के निज़ाम पैलेस में CBI अधिकारियों द्वारा पूछताछ की गई थी। तकरीबन 7 घंटे से भी ज़्यादा की कड़ी पूछताछ के बाद इनको हिरासत में ले लिया गया था। गुरुवार को इन सभी को आसनसोल की CBI अदालत में पेश किया गया। यहाँ CBI द्वारा इनके 5 दिनों के रिमांड के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब 18 तारीख को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। इस दिन इन सभी को एक बार फिर आसनसोल की CBI আদালত में पेश किया जाएगा। অভিযোগটাই বা কি ছিল ওনাদের এগেইনস্ট? আমরা শুনলাম যেটা অনুপ মাঝির সঙ্গে ডাইরেক্ট লিংকের কথা বলা হলো। আজকে যে আসামিদিকে প্রোডাকশন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে আমি 4 জনের হয়ে জামিনের আবেদন করেছিলাম। তারা হলেন সুভাষ মৈত্র, সুশান্ত ব্যানার্জি, রিঙ্কু বেহেরা এবং আরেকজন ছিলেন মুকেশ কুমার। এছাড়া আরও যে 3 জন ছিলেন তাদের হয়ে অন্য উকিলবাবু ছিলেন। মুদ্রা কথা যেটা আমরা দেখলাম, এনাদের এগেনস্টে আজ পর্যন্ত কোনো ইনক্রিমিনেটিং মেটেরিয়ালস যাতে করে প্রমাণিত হয় এরা ইলিগাল মাইনিংয়ের সঙ্গে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত, এ ধরনের কিছু CBI খুঁজে বার করতে পারেননি। জুলাই মাসে গত বছর এনাদের প্রত্যেকের বাড়ি এবং অফিসে রেড হয়েছিল, সার্চ সিজার হয়েছিল, সাফিসিয়েন্ট ডকুমেন্ট কালেক্ট করা হয়েছিল। সেখানে এনাদের এগেনস্টে আজ পর্যন্ত কোনো আয় বহির্ভূত সম্পত্তির হিসাব CBI দাখিল করতে পারেনি, যা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে এরা ইলিগাল মাইনিং থেকে কোনোভাবে অবৈধ পয়সা নিয়েছে। কিন্তু বুঝতেই পারছেন ম্যাটারটা এখন অন্যদিকে চলে গেছে। যেহেতু এটা একটা হাই প্রোফাইল মামলা, কিছু রাজনৈতিক রঙও আছে, যে কারণে এনাদিকে আবার অ্যারেস্ট করা হলো। আজকে যেটা CBI পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন, তারা অনুমান করছেন এনারা অনুপ মাঝির কাছ থেকে বেশ কয়েক কোটি টাকা নিয়েছেন,
সেই কোটি টাকাটা তারা কবে, কোথায়, কিভাবে নিয়েছেন এবং কোথায় রেখেছেন সেটাকে খুঁজে বার করার জন্য জেরা করবেন। অথচ 1 বছর হয়ে গেল, যাবতীয় সার্চ সিজার কমপ্লিট, রিপিটেডলি এনাদিকে জেরা করা হয়েছে, এনারা পালিয়ে যাননি, যখন যেখানে যেভাবে ডাকা হয়েছে গেছেন, কিছু উদ্ধার করা হয়নি। তা সত্ত্বেও জাস্ট করা হলো এবং 5 দিনের প্রেয়ার করা হয়েছিল সিবিআই রিমান্ডে। লানেট কোর্ট ওটাকে অ্যালাউ করেছেন। 18 তারিখে প্রোডাকশনের দিন আছে। 5 দিনের আপনারা প্রত্যেকেই জামিন আমরা প্রত্যেকেই জামিনের আবেদন করেছিলাম এবং রিমান্ডের আবেদনের বিরুদ্ধতাও করেছিলাম, যদিও জজ সাহেব সেটাকে কনসিডার করেননি এই মুহূর্তে ইনভেস্টিগেশনের স্টেজে। সরাসরি যোগাযোগের যেটা বলছেন, এখনো পর্যন্ত কোনো প্রমাণ সরাসরি সিবিআই দাখিল করতে পারেনি। তারা বলছে আমরা অনুমান করছি এবং এনাদের মুখ দিয়ে বার করতে চাই যে কবে টাকাটা নিয়েছিলেন, কোথায় নিয়েছিলেন, কিভাবে নিয়েছিলেন এবং কোথায় রেখেছেন। অথচ এনাদের প্রত্যেকের বাড়ি এবং অফিস সার্চ সিজার করে কিচ্ছু উদ্ধার করা যায়নি। না, আপনারা কি বলছেন যে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত? সবটা পুরোপুরি বলা ঠিক হবে না, অনুমান একটা সেরকম ধরনেরই কিছু ম্যাটার আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন। না, যখন আপনারা বলছেন যে কিছু পাওয়া যায়নি তারপরেও অ্যারেস্ট। আমি আশিস মুখার্জি। আশিস বাবু, যখন কিছুই পাওয়া যায়নি তার সামনে তাকিয়ে বলবেন। মূলত যে উনি আপনার মক্কেল, সেটা হচ্ছে অভিযোগ করেছেন বললাম মুখ্যমন্ত্রী কি করেছেন? অভিযোগ করা হয়েছে যে আমাদের কাছে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার কিছু নেই, যে পুলিশকে বলা হচ্ছে পুলিশ যেন অ্যাকশন নেয় এই কোল ফিল্টারেজের ম্যাটারটা, সো দ্যাট ক্যান বি সর্টেড আউট। কারণ আমরা বললে অ্যাট বেস্ট উই ক্যান সে বিফোর দি পুলিশ অফিসার্স or the commissioner or the district magistrate, and we have done so. Thereafter nothing remains for us to do. কার কার কাছে অভিযোগগুলো করেছিল? ডিস্ট্রিক্ট বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে এই বিষয়টা। কার কার কাছে অভিযোগ জানাচ্ছেন? উনি কমিশনারকে, আমাদের আসানসোলের কমিশনারেটকে দেওয়া হয়েছিল, তারপরে কনসার্নিং মিনিস্টারকে দেওয়া হয়েছে এবং স্টেট হাই পুলিশিয়াল অফিসিয়ালসদের দেওয়া হয়েছে। এভরিহোয়ার হি হ্যাজ। মুখ্যমন্ত্রীকেও দিয়েছিল? মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপারটা আমি ঠিক পার্টিকুলারলি আমার কাছে সেই চিঠিটা নেই, আমার কাছে বাঞ্চ। আপনি বললেন আদালত কোথায় না ওখান থেকে ওই আদালতে আপনি বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। হ্যাঁ, যে এই ধরনের চেক করা যাচ্ছে না, সেটা চেক করা যাচ্ছে না, সেটা বলা হয়েছে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকে বলা হয়েছে যে আমরা চেক করতে পারছি না, আমাদের কাছে কোনো পাওয়ার নেই। আমরা যখনই রেডে যাই সিআইএসএফকে নিয়েই যাই এবং সিআইএসএফ আমাদের সঙ্গে থাকে, কিন্তু তো আমাদের তো তার বাইরে আর কি কিছু অনিয়ম যে হচ্ছে সন্দেহ থেকেই কি করেছিলেন? এটা কিসের অনিয়ম? মানে বেনিয়ম হচ্ছে, একটা বেনিয়ম। ওদের কাছে যখন ইনফরমেশন এসছে, দি মোমেন্ট দ্য ইনফরমেশন কাম বিফোর দি পাবলিক সার্ভে, as so far as my calamity is concerned, he immediately rushed to the respective officials to restrain that part. স্টেটের হায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলকে জানানো মানে সর্বোচ্চ যিনি পদাধিকারী তাকেও জানানো হয়েছে এবং সেই কাগজ তিনি সিবিআইকেও দিয়েছেন। এটা কি মনে করছেন যে পলিটিক্যাল মোটিভেটেড? না, এইসব কথা আমি পলিটিক্যাল ব্যাপার। তিনি অনুপ মাজির থেকে টাকা নিয়েছেন তেমন সন্দেহ করছে তারা। কারণ সিবিআই কি করছে, ইট ইজ দেয়ার জব। আমি since I am a defense lawyer, I can exclusively give coverage about the defense, what sort of defense I need, and I have taken before the honor. আচ্ছা, আপনি যে বললেন আশিস চন্দ্র কুমার। আচ্ছা, আপনি যে বললেন কি সিএম পর্যন্ত জানানো হয়েছে, তো কটা চিঠি লেখা হয়েছে টু দ্য সিএম? সিবিআই কাছে সমস্ত কোর্টকে বলে দিয়েছি। আপনি বললেন না ওপেন কোর্টে কি সিএম এর কাছে চিঠি আমরা পাঠিয়েছি? সবাইকে দিয়েছি। সিএম কে কটা চিঠি পাঠিয়েছেন, কোন সময় পাঠিয়েছেন? কটা চিঠি তো আমি বলিনি, আমি বলেছি ইভেন দ্য ইনফরমেশন হ্যাজ গিভেন টু দি হাইয়েস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। আপনি ওপেন কোর্টে বললেন कि सीएम के चिट्ठी पाठानो হয়েছে, ওই চিঠিটা কে দিয়েছিল? दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े वाणिज्यिक संगठन फॉस्बीकी की तरफ से आज पश्चिम बर्धमान के जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए केंद्र सरकार द्वारा पैकेट दूध, लस्सी आदि पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। पश्चिम बर्धमान जिला शासक के जरिए उन्होंने देश के वित्त मंत्री, गृह मंत्री से गुहार लगाई कि इस तरह के फैसले वापस लिए जाए, क्योंकि इससे महंगाई और बढ़ेगी। इसके उपरांत आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित पार्वती होटल में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया, जहां आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उखड़ा, अंडाल, यहां तक के पानागढ़ से भी व्यवसायी आकर पत्रकारों से रूबरू हुए। सभी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष आरपी खैतान ने कहा कि जिस तरह से जीएसटी काउंसिलिंग पैकेट दूध, लस्सी आदि पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया है वो सर्वथा अनुचित है और इससे
वापस लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी काउंसिलिंग में ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है और जीएसटी काउंसिलिंग में केंद्र के साथ राज्य सरकार के वित्त मंत्री भी शामिल हो। আমাদের ফোর্সবিকির তরফ থেকে আজকে ডিএমের মাধ্যমে আমরা সেন্ট্রাল ফাইন্যান্স মিনিস্টার এবং স্টেট ফাইন্যান্স মিনিস্টারের কাছে আমরা প্রোটেস্ট করলাম যে জিএসটি যে সমস্ত প্যাকেটবন্দি এগুলোকে লাগু করেছে, যেটা ফ্রিডমের পর থেকে আজ পর্যন্ত লাগু হয়নি, যে সমস্ত দুধ, লস্যি, ঘি সমস্তর উপরে যেগুলো করেছে সেগুলো গরিব মানুষের উপরে চাপটা আসবে। তাই আমরা ডিএমের মাধ্যমে ফাইন্যান্স মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টার, আমাদের স্টেট মিনিস্টার, সিএমের কাছে সব কাছে প্রোটেস্ট করলাম যাতে এটা এই 75 ইয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে যেখানে সেলিব্রেশন হচ্ছে, যেখানে জনগণের একটু সুরাহা পাওয়া উচিত, কিছু সুবিধা পাওয়া উচিত, সেখানে সুবিধা না পেয়ে উল্টো যেটা স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত লাগু হয়নি, যে প্যাকেটজাত যে সমস্ত দ্রব্যের উপরে যেগুলো দুধ, মাখন, ঘি এইসবের উপরে সেগুলোর উপরেও জিএসটি লাগু হয়েছে। তো আমরা এটা প্রোটেস্ট করছি, সেটা ডিএমের মাধ্যমে আমরা ফাইন্যান্স মিনিস্টারের কাছে পাঠালাম যাতে এটা উজ্জ্বল হয়। धार्य होगा, लगेगा। स्वाधीनता के बाद से अभी तक जो खाद्य सामग्री थी उनको टैक्स से आउट रखा गया था, बाहर रखा गया था, टैक्स की परिधि से ये हमेशा और बिक्री कर की परिधि से बाहर था। अब ये जो प्रपोज़ल आया है ये बहुत ही घातक प्रपोज़ल आया है। मैं उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि ये किसके लिए घातक है ज़्यादा। दुकानदार तो अपने घर से देगा नहीं, दुकानदार तो उसके ऊपर टैक्स लगा करके बेचेगा। जैसे चीनी है, चीनी 40 रुपये किलो लगभग अमूमन बाज़ार में बिक रही है अभी, उसके ऊपर 5% माने कितना हुआ, 2 रुपया किलो। तो 40 की चीनी 42 रुपये बिकेगी। आटा क्या भाव बिक रहा है, 30 रुपये के लगभग, उसके ऊपर 5% लगेगी तो कितना दाम हो गया, 31.5, 1.5 रुपया किलो वो ज़्यादा बिकेगी। तो ये क्या कर रही है सरकार, ऐसे ही पहले महंगाई है और इस महंगाई के दौर के अंदर में चीज़ों को के दाम के अंदर में इस अप्रत्याशित वृद्धि जो होने जा रही है इसका बहुत बुरा असर अर्थव्यवस्था पर और आम नागरिकों पर पड़ेगा। जो हमारे उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर बहुत गहरी मार पड़ेगी इससे। देखिए, हम लोगों का ये आंकलन है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मल्टीनेशनल्स जो कंपनी हैं, जो बाहर की और भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े जो घराने हैं जो इस उद्योग में हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए काम किया गया। उनके जो पहले से लेवल्ड हैं वो उस पर तो पहले से टैक्स था। अब ये जो छोटे और मझोले ग्रेड के जो उद्योग हैं इस व्यवसाय में, ये उनको एट पार लाने के लिए और ये टैक्स लिया गया है, ये टैक्स लगाने की प्लानिंग है। तो इसका मतलब ये होगा कि मल्टीनेशनल यहाँ के बड़े घराने और हमारी जो ये जो मझोली और छोटी कंपनियां हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वो सब भी एक एट पार आ जाएंगी और उनका माल एक साथ एक ही दर में बिकेगा। ऐसा कभी संभव है? कभी हम लोग उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं हमारे व्यापारी भाई? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो ये बहुत गहरी चाल है। बड़े कंपनियों ने सरकार को किस हिसाब से कन्विंस किया है हमें मालूम नहीं, परंतु उन्होंने लगातार वो लोग कन्विंस कर रहे थे। हम लोगों के पास खबर आ रही थी कि वो लोग लगातार सरकार के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि जो आप ये समझिए कि जो एक आटा चक्की लगा रखा है, बात समझिए आप, आटा चक्की 5 लाख 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो माल को पैक कर दिया है, ठीक है, और माल को पैक करके उसके ऊपर एक अपना मार्का भी दे दिया है और वो बाज़ार में बेचारा घूम घूम के जाके बेचता भी है, माल का कलेक्शन भी करता है, डिलीवरी भी देता है, उसका बच्चा है, लड़का है, वो लोग मिल करके उस काम को चलाते हैं, उसका परिवार है, ऐसे ही चलता है। अब उसके ऊपर में यदि ये टैक्स लगाएंगे तो माल तो उसका जो बड़ी कंपनियों के जो रेट है उसके साथ हो गया, तो कौन लेगा उसका माल? इसका माल इसलिए बिकता था कि ये थोड़ा सस्ता था, क्वालिटी माल बनाता था, सस्ता देता था, इसलिए ये माल चलता था। तो ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। सारे देश के अंदर में इसके ऊपर आंदोलन हो रहे हैं। सारी देश की जितनी चली 40,000 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लगभग जो हैं 8.5 करोड़ व्यापारी हैं, उन सब के ने मिल करके इसका प्रतिवाद करने का फैसला किया है। हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है कैट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उनके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, हमारे जो गृह मंत्री हैं आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, ये इस तरह के सारे मंत्रियों के साथ उन लोगों ने मीटिंग की है
ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं गोयल साहब, उनसे भी मुलाकात की है। उन सबको इस बात की गंभीरता का एहसास कराया है। उन लोगों ने सब ने कहा हम देखते हैं। लेकिन एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें खाली केंद्र सरकार को दोष देने से नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल के अंदर में देश के हर राज्यों का जो वित्त मंत्री है वो उसमें सदस्य के रूप में शामिल है, और ये निर्णय पूरी तरह से यूनानिमस सर्वसम्मति से गृहीत किया गया। मतलब हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें साय है, साथ है, इशारा है, तब ने लगा है ये। अगर आज बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री विरोध किए होते तो ये नहीं लगता होगा कि वहाँ विरोध हो जाता। लेकिन सर्वसम्मति से गृहीत निर्णय है, इसलिए हम लोगों ने जहाँ केंद्रीय सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है, वहीं हम लोगों ने हमारे देश की, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री साहिबा, हमारे राज्य के चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे राज्य के वित्त मंत्री, हमारे राज्य के चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सब को भी हम लोगों ने मेमोरेंडम प्रेषित किया है। हम लोगों ने माने सिर्फ फौजबेकी नहीं, बाकी सारे फौजबेकी के एपेक्स बॉडी जितने फौजबेकी तो 11 जिलों की सर्वोच्च संस्था है, एपेक्स बॉडी है। इसके अंदर में 70-80 संगठन हैं। उन सब ने इसका विरोध करते हुए सरकार को अपना मेमोरेंडम ईमेल के माध्यम से और हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रेषित ऑलरेडी कर दिया है। आज हम लोगों ने, आज जो हम लोग आए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, हम लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। वहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर इंडस्ट्रियल चैम्बर है, उसके अंदर में इकट्ठे होकर के लगभग 250 व्यापारी हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम लोग एक जुलूस की शक्ल में डीएम ऑफिस तक आए थे। और वहाँ हम लोगों ने एक प्री फिक्स समय था हमारा 12 बजे डीएम साहब से, हम लोगों ने उनको अपना प्रतिवेदन, मेमोरेंडम, डेपुटेशन दिया है। उनके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को दिया है, निर्मला सीतारमण जी को दिया है, उनके माध्यम से चीफ मिनिस्टर को दिया है, चीफ सेक्रेटरी को दिया है, वगैरह वगैरह सबको दिया है। हमने भेज भी दिया डायरेक्ट, लेकिन इनके थ्रू भी दिया है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल कार्रवाई होती है। तो ऑफिशियल ये होने से क्या होगा, तो मर्यादा मिलेगी। सब जगह इस बात की खूटी नाटी विचार विमर्श किया जाएगा इसके ऊपर कि हाँ भाई ठीक है, और इसका कितने विरोध के अंदर में पत्र आते हैं, उस बात की बहुत गिनती होती है, कितने संगठन इसके खिलाफ हैं। हम लोगों ने अभी तक की कार्रवाई ये की है। अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को आगे क्या कार्रवाई करनी है। हम लोगों ने अपने शहर में के अंदर में, हर शहर के अंदर में छोटे छोटे और जुलूस निकालने की, प्रतिवाद सभा जिसको कहते हैं, निकालने का प्लानिंग किया है। वो अभी हम लोग डिसीजन लेंगे। उसके बाद एक सेंट्रल रैली आसनसोल में और दुर्गापुर में दोनों जगह करने की भी बातचीत चल रही है। तुम बोलो सचिन बोलो। আজকে আপনারা যে স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়েছিলেন, সেখানে আপনারা নিজেরাই দাবি করলেন যে বেশ কিছু সংগঠন আপনারা যারা রয়েছে আসানসোলের বিভিন্ন জায়গা থেকে, তাদের উপস্থিতি যথেষ্টই কম ছিল। কেন তারা কি এই বিষয়টাকে সমর্থন করছে না? না না, এটা সব সংগঠনই সমর্থন করছে। এর আগে আমাদের যে মিটিং হয়েছে ফোর্সবেগের নেতৃত্বে, সেই আসানসোল এই ডিস্ট্রিক্টে যত সংগঠন, সমস্ত কিছু যে চেম্বার অফ কমার্স সবাই সহমত হয়েছে। সেখানে 2-4 জন কম বা বেশি সেটা ফ্যাক্টর নাই, কিন্তু তাদের প্রতিনিধি প্রত্যেকে এখানে এসছেন এবং এখানে পার্টিসিপেট করেছে। অতএব এখানে আমাদের মধ্যে সব এক আছি। আমাদের যেটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে স্বাধীনতার পরে 75 বছর স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করতে চলেছি। সেখানে আমাদের এক্সপেকটেশন হচ্ছে জনগণকে কিছু সুরাহা দেওয়া, কিছু সুবিধা দেওয়া। তার পরিবর্তে আমরা কি পেতে যাচ্ছি না, খাবার জন্য যেগুলো লস্যি, যেগুলো দই কি এইসব খাওয়ার যেগুলো গরিব মানুষরা ব্যবহার করে, বাটার মিল, এইগুলোর উপরে জিএসটি, যেটা আজ পর্যন্ত কোনো দিন এর উপরে জিএসটি বা কোনো ট্যাক্স ছিল না, না কোনো সার্ভিস ট্যাক্স, না কোনো জিএসটি, না কোনো ট্যাক্সের কে ছিল না। আমরা আশা করব সবসময় যে এই সমস্ত খাদ্যগুলোকে তার ট্যাক্সের আওতার বাইরে রাখা। তা না করে এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট যাই বলুন, জিএসটি কাউন্সিল এটা করেছে, এখানে সবাই ইনভলভ আছে, সব স্টেট সেখানে আছে, প্রতিনিধি আছে সেখানে। অতএব আমরা এটা প্রতিবাদ করছি এবং সারা দেশব্যাপী এটা প্রতিবাদ হচ্ছে। আমাদের যেটা অর্গানাইজেশন আছে ক্যাট, তারা প্রতিবাদ করছেন। তারা আপনি শুনলেন সমস্ত ফাইন্যান্স মিনিস্টার, ডিফেন্স মিনিস্টার সবার সঙ্গে তারা দেখা করেছেন যে এটাকে রিমুভ করার জন্য, এটা যেন উইথড্র করা হয়। এবার মনে হচ্ছে কি যে আমাদের মরতে গেলে মরার আগে কিন্তু জিএসটি দিয়ে যেতে হবে, কারণ হচ্ছে হসপিটালের উপরে জিএসটি কিন্তু প্রয়োগ করেছে, সেখানেও কিন্তু ছাড় পাবে না।
অতএব আমরা এই স্বাধীনতা দিবস যেখানে সেলিব্রেশন হতে যাচ্ছে 75 ইয়ার্স, সেখানে আমরা আবেদন করছি। আমরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে আমরা সেন্ট্রাল মিনিস্টারের কাছে সে আবেদন পৌঁছে দেওয়ার করে এলাম। সেটা নিশ্চয়ই যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। আমরা আশা করব যে জিএসটি যেগুলো সমস্ত উপরে লাগু হয়েছে সেগুলো উইথড্র করা হবে। এখানে এই ডিস্ট্রিক্টে যত চেম্বার আছে সব আছে, ইভেন পানাগড় থেকে শুদ্ধ ওনারা এসছেন। পানাগড় চেম্বার অফ কমার্স এসছে, দুর্গাপুর চেম্বার আছে, নিয়ামতপুর আছে, আসানসোল আছে, সব মার্চেন্ট আছে, উখড়া আছে, রানীগঞ্জ চেম্বার আছে, উখড়া আছে, নিয়ামতপুর সব চেম্বার আছে, দুটো চেম্বার আছে, টিম্বার অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, এখানে সিমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, আছে, সবাই আছে। আরে দেখুন, যে কোনো অনুষ্ঠান করতে গেলে আমরা যদি 40টা সাংবাদিককে ডাকবো, তো আপনারা 40টা থোড়াই চলে আসবেন। কারো অসুবিধা হতে পারে, অসুখ হতে পারে, বাড়িতে বিয়ে বাড়ি হতে পারে, 5টা 7টা 10টা কম আসতেই পারে। তো আমাদের যদি একটা সংগঠন না এসছে, তাদের তো কোনো পার্সোনাল অসুবিধা থাকতেই পারে। আমাদের মোটামুটি 90% সংগঠন আমাদের জেলার যারা আছে তারা এসছে। নেক্সট প্রশ্ন করুন। आप जो बोल रहे हैं कि केंद्र और राज्य की सहसम्मति से ये टैक्स लागू होगा, ये जो टैक्स लागू हो रहा है ये किया जा रहा है। इसमें जो जीएसटी काउंसिल है उसका मेंबर हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर उसमें रहता है, ऑटोनोमस बॉडी, सब मिलकर डिसीजन होता है। तो सबका सहमति है उसमें, इसीलिए ये डिसीजन हुआ। इसी आपको क्या लगता है कि आप लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है हमारे स्टेट का, उसको भी भेजे है, हमारा जो चीफ मिनिस्टर उसको भी भेजे है, सबको भेजे है। अरे खाने का सब सामग्री पर लग गया ना, आटा मैदा सूजी बेसन दही फही सब मट्ठा छाछ सब सभी चीज़ पर तो लग गया। देखिए कोविड में सबसे सफरर हुआ टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्रीज। जो गरीब लोग जो 1000 का नीचे जो जीएसटी फ्री था, 1000 का नीचे जो होटल रेंट, उसका ऊपर भी 12% लागू हो गया जीएसटी। खाना का तो छोड़िए, सब में ये बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है ना कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है और सरकार जो है हमेशा दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज इससे आम आदमी इफेक्टेड हो रहे हैं। गरीब आदमी जिसके लिए सरकार कहती है कि नहीं भाई हम गरीब को चावल मुफ्त में देते हैं, तो उस जगह पर ये टैक्स लगाना भी तो कहीं ना कहीं एक अन्याय है, मैं समझता हूँ। एक जोर ज़बरदस्ती वाली बात है कि भाई आप एक तरफ उनको आप फ्री में चावल देते हैं, दूसरी तरफ आप उससे टैक्स वसूली करेंगे। रानीगंज के औद्योगिक क्षेत्र मंगलपुर के घनश्याम इलाके में स्थित श्याम सेल कारखाने को लेकर स्थानीय लोगों ने आज आपत्ति जताई। इनका कहना है कि श्याम सेल कारखाना प्रबंधन ने जो बाउंड्री बनाई है, उस बाउंड्री की वजह से यहाँ से गुजरने वाला सरकारी नाला इनकी फैक्ट्री बाउंड्री के अंदर आ गया है। इन्होंने कहा कि इससे उस नाले की साफ सफाई करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। इस संदर्भ में एजाज खान नामक एक स्थानीय निवासी ने कहा कि इस नाले से सिर्फ रोनाई नहीं बल्कि पंजाबी मोड़ आदि इलाकों का पानी भी बहता है। ऐसे में अगर ये नाला कारखाने की बाउंड्री के अंदर चला जाएगा तो उसकी साफ़ सफाई कैसे की जाएगी, और अगर बरसात के मौसम में इस नाले की साफ़ सफाई नहीं की गई तो रोनाई सहित पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कारखाना प्रबंधन को चाहिए कि वो 20-25 फुट जगह छोड़कर इस बाउंड्री को बनाएं, ताकि अगर बारिश के मौसम में नाला जाम हो गया तो उसे साफ करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में वो कारखाना प्रबंधन से बात करना चाहते हैं, लेकिन कारखाना प्रबंधन टालमटोल कर रहा है। এটার মধ্যে কে এখন ফ্যাক্টরি হয়নি, আমরা এখন এটা বন্ধ রাখছি। ঠিক আছে, পরবর্তীতে প্রবলেম কি হবে? প্রবলেম কিছু না, প্রবলেম প্রথমে কিছু রোনার ছেলে এসেছিল, এসে বললেন যে আমাদের এই ড্রেনটা ছেড়ে করতে। আমরা অলরেডি ড্রেনটা ছেড়ে কাজ করছি। এখন এনারা এসে বলছে যে না, এই বাউন্ডারির ভিতরে আমাদের দু সাইডে ওয়াল করে দিতে পারছে। তো এটা তো ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আছে, আমি ম্যানেজমেন্টকে জানাচ্ছি, তো আমাদের যে কর্তৃপক্ষ আছে ঊর্ধ্বতন, তারা এসে ডিসিশন নেবে। तो ये जो नाला है ये रोनाई होते हुए आ रहा है, ठीक है आएगा। तो यहाँ से अगर फ्यूचर में अगर जाम हो जाता तो ये फैक्ट्री के अंदर आ जा रहा है नाला। तो ये फैक्ट्री के अंदर आ रहा है नाला या फैक्ट्री का बाहर आ रहा है? नहीं देखिए, अभी क्या है ना, हम लोग क्या करेंगे, बाद में हम लोग बाहर से भी तो नाला बना देगा, इसमें इन लोग को तकलीफ नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग देखिए वो जो हम लोग का यहाँ से मोटा मोटी 30 फुट हम लोग छोड़ दिए,
फ्यूचर के लिए अगर कुछ जाम होगा तो इधर से साइड से हम लोग नाला बना देंगे फ्यूचर के लिए। अगर जाम होगा अच्छा, मैप में जो नाला निकल रहा है इन लोगों अभी वो नाला पे काम नहीं कर रहा। अब देखिए आपका क्या है, आपके बोलने का क्या है? बोलिए। मैंने ये लोग जो हम देखिए साइड लोग जो कर रहा है, देखिए हम इन लोग को बोल रहा है कि हम लोग जाके हमारा जो मैनेजमेंट है वो तो उससे बहुत के बात कर लीजिए। कौन है मैनेजमेंट? हम लोग को जो फैक्ट्री मैनेजर उज्जवल चटर्जी सर, उनके साथ जाके बैठ के बात करेगा। क्या नाम हुआ आपका? असित भट्टाचार्य। यहाँ क्या पद में क्या कर रहे हैं? हम सिविल मैनेजर। डीडीए परमिशन हुआ है? वो हम नहीं बोल पाएगा। वो प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। देखिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पूरा रानीगंज का मान लीजिए पंजाबी मोड़ से रोनाई से लेके जितना पानी है इस रास्ते से बहता है, ये नाला से एकदम उधर को जाता है। अभी ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या करे, इधर एक बाउंड्री दिया है, किधर बाउंड्री दिया है और बीच में नाला छोड़े है। क्या फैक्ट्री है ये? सामसेल फैक्ट्री है। और ये जो नाला है इनके फैक्ट्री के अंदर से पार हो रहा है, जो नक्शा में भी देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट का नाला और नक्शा में भी है। हम लोग को इशू इस बात का है कि ये नाला अगर इन फ्यूचर जाम होता है किसी वजह से, आप तो पहली बात तो गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ आप अपने घर के अंदर से या कोई फैक्ट्री के अंदर से आप नहीं पार कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये इशू है मेरा कि आप अंदर से कैसे पार कर सकते हैं। अगर आप उसको पार करना है तो आप अपना बाउंड्री थोड़ा इधर कर दीजिए, थोड़ा इधर कर, थोड़ा स्पेस दे दीजिए 10-20 फीट का, ताकि उसको साफ करने हम लोग भी आ सके। हम लोग नहीं आते, चलिए म्यूनसिपलिटी का काम है, म्यूनसिपलिटी आएगा। स्पेस तो उसको चाहिए, पहला इशू। दूसरा इशू, आप अगर अंदर में करते फैक्ट्री को, आप तो उसको यूज़ के लिए करेंगे, अपना फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे। आपका फैक्ट्री, आप उसमें केमिकल यूज़ करेंगे, तरह तरह का चीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ मवेशी होता है, जानवर चरता है लोगों का। इवन जो नीचे तबके के लोग हैं जिनके घर में पानी का सुविधा नहीं है, बाथरूम नहीं है, उन लोग आके यहाँ पे नहाता धोता भी है, तो केमिकल से उनको भी इशू होगा। तो इस तरह का ढेर सारा इशू है। रहा बात, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपको हम दिखा सकते हैं, वहाँ पर नीचे पिलर उलर गाड़ के सब रेडी कर दिए हैं। हम लोग मैनेजर के साथ जाकर पहले बैठे कि बातचीत से चीज़ हल हो जाए। उन्होंने बातचीत पहले तो हम लोग को बहुत घुमाया, उसके बाद अपना नया बताया कि इनसे बात हो गया, उनसे बात हो गया। तो इनका है पूरा सेटअप किया हुआ है, ऐसा बात नहीं है, तभी इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। दूसरा बात, हम लोग बोले अभी तत्काल के लिए कुछ नहीं तो कम से कम वहाँ एकदम एंड में नाला का जाम करके लोग रखे हैं पानी स्टॉक करने के लिए। बाढ़ आएगा तो कहाँ आएगा, रोनाई में आएगा, कॉलोनी में आएगा, इनका तो कुछ होगा नहीं, उसको तो साफ कर सकते थे। रहा बात कागज़ कलम का, तो हम कागज़ कलम तब जाएंगे जब हमारा बात नहीं सुनिएगा। हम लोग जाएंगे, जो भी प्रोसेस होता है लीगल प्रोसेस सब करेंगे, लेकिन उससे पहले तो आपसे हम बात करने के लिए आए थे। आप हमको आश्वासन भी दिए कि करेंगे हम, लेकिन आप नहीं किए। आप पहले सेटिंग कर लिए चारों तरफ टाइम लेके हम लोग से। आज आप पुलिस भी आए, यहाँ पे पुलिस भी जैसे मेन दाबी क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए ये पूरा जो ये मेरा नहीं है, ना इनका है, ना किसी का है, ये पूरा रानीगंज का है, रोनाई का भी नहीं मैं बोलूँगा, पूरा रानीगंज का पानी आता है इसमें। मेन मुद्दा है, गवर्नमेंट का जगह है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप अपने अंदर से पहली बात तो लेके नहीं जा सकते हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा जगह। आप जितना बड़ा भी आप प्रोजेक्ट बनाएं तो वो पूरा पार होना चाहिए। और सिंपली यहाँ से पक्का नाला चाहिए, दोनों तरफ स्पेस चाहिए, ताकि कल जाम हो तो म्यूनसिपलिटी का आके बुलडोजर गाड़ी जो भी इतना गाड़ी पास होने का वो साफ करके जाए, ताकि गांव में हम लोग का पानी ना भरे। आप उसको अपना यूज़ में भी नहीं ला सकते। आपका फैक्ट्री है, आपको यूज़ करना है, आप उसके लिए अलग काम कीजिए। आप हम लोग का पानी में आप केमिकल डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, ये भी नहीं। ये सब हम लोग का डिमांड है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एजाज खान है। ये जगह का क्या नाम है? ये जगह का नाम सामसेल मंगलपुर के एरिया में पड़ता है, घनश्याम एरिया में पड़ता है। सरकारी स्वामित्व वाली स्टील फैक्ट्री की जमीन पर कब्जे को लेकर दो मोहल्लों में झड़प हो गई। बनपुर के मुंगेरिया खटलपाड़ा में बुधवार रात दो पक्षों के बीच हुई झड़प में कम से कम 4 लोग घायल हो गए। कई कारों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया। मालूम हो कि बनपुर के मुंगेरिया खटलपाड़ा में इसको की ज़मीन खाली है। उस ज़मीन पर कब्जा को लेकर दोनों मोहल्लों में विवाद हो गया था। स्थानीय पार्षद गुरमीत सिंह ने कहा कि इसको की ज़मीन पर कब्जा कौन करेगा, इसको लेकर दोनों मोहल्लों में झड़प हो गई थी। पुलिस ने आकर स्थिति को नियंत्रण किया, लेकिन कई घरों कारों में तोड़फोड़ की गई और दोनों पक्षों के 4 लोग भी घायल हो गए। उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या
लाल बाबू चल किसको जाना है? চুপচাপ থাকবে। हमको कुछ नहीं पता सर, हम लोग तो शादी घर में थे। अच्छा, क्या सुनने में मिला? सुनने में हम लोग तो बोल रहे हैं, जब दोनों तरफ से ईंटा चलने लगा तब हम लोग पहुंचे। हम लोग तो थे ही नहीं, हम लोग सब शादी घर से आए। हम लोग आज घाघरपुरी गए थे शादी में। कौन लोग ईटा चलाए अभी नहीं मालूम? ईंटा दोनों तरफ से चला है। मैंने कौन कौन साइड से ईटा चला? इधरों से चला, उधरों से चला। मैंने इधर कौन लोग था, उधर कौन लोग था? देखे तो नहीं सर, हम लोग तो घर में बंद थे। जब घर का एकदम पूरा नक्शा मेरा बिगड़ने लगा था, हम बच्चा लोग को लेकर जल्दी से भागे क्या बाहर। सुनने में आया खटाल को लेकर के कुछ हुआ है? दोनों पार्टी से हो रहा है। माने यहाँ पर जो इसका मैदान ठो है, ये दीवाल उठाने के चक्कर में ये सब बोल रहा है जो झमेला हुआ, तो इसका लेकर कुछ इससे पहले भी कोई झमेला हुआ था क्या? नहीं, वो तो रहा ही घरे का लेके, ये दीवार का लेकर कुछ भी नहीं हो रहा। घर के लेके हो रहा? और घर में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? घर के लेके हो रहा? घर का लेके क्या प्रॉब्लम हो रहा था हम नहीं बता सकते। इसमें जो पुराना बड़ेदार था वो चला गया। अच्छा, वही लेके झगड़ा है। माने इसका चक्कर में आप लोग का घर पे भी वही हो रहा है। देखिए घर के वजह से ये दोनों घर सब चुरा रहा आपका है। नाम? नहीं देख रहा है कि बच्चा बोल तो रहे, देखिए अभी क्या होता है मेरा बच्चा लोग को, आप ही लोग देखिए। आपका घर में जो घर है किनका घर है? ये तो स्कोप का घर है सर। नहीं, इसको के जमीन पे घर है। हाँ। तो जो बोल रहे घर के बगल वाला घर के लेकर के हो रहा है, तो कोई किनका घर है? मैंने लोग उनको हटाना चाह रहे क्या? नहीं, उनको नहीं हटाना चाह रहा। ये जो घर है ना, हाँ। जो बूढ़ा रहते थे वो खाली करके चले गए। ठीक। चले गए तो उसी का घर का लेके इतना तमाशा हो रहा है। वो घर में कब्जा करना चाह रहा है। हाँ। अच्छा, समझे? ठीक। आपका नाम? मेरा नाम तो गीता देवी। ठीक है। मुझे आप तो यहाँ का काउंसलर है ना, तो क्या घटना हुआ था? यहाँ पर कुछ इसरो का ज़मीन है, वैकेंट ज़मीन, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए दो ग्रुप है। उसको लेकर आपस में उन लोगों का में मारपीट हुआ है, और इसमें दोनों पक्ष इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि एक दूसरा का गाड़ी तोड़ा गया है और एक दूसरा पर पत्थरबाजी किया गया है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग इंजर्ड हुए हैं। और पुलिस अभी आई है, अपनी कार्रवाई कर रही है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ घर भी है, बना हुआ घर भी, उस पर कब्जा भी करने के लिए चाह रहा है। हाँ, ये जो है एक्चुअल इसको की वैकेंट जगह है, इसलिए हर पक्ष कब्जा करने का चाह रहा है। वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ या बनाना चाह रहा है, इसी को लेके दोनों में पक्ष में झगड़ा हुआ है। और इस इतना ज़्यादा आपस में लोग मारपीट कर लिया कि दोनों पक्ष का पूरा मोहल्ला एक दूसरे पे पत्थरबाजी किया है, और महिलाएं और पुरुष दोनों तरफ से जख्मी हुए हैं, जिन्हें तात्कालीन हॉस्पिटल लेके जाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी जिन लोगों ने आपस में मारपीट की है, पुलिस के पास उनकी डिटेल है, वो उनको अभी गिरफ्तार करने के प्रक्रिया में है। कौन लोग किया ये पता है? ये लोकल यहाँ के मोहल्ले के लोग ही आपस में, कोई बाहर का कोई नहीं, यहीं के दोनों सामने सामने रहने वाले दो पक्षी हैं, इनके बीच में आपस में हुई है। किसी दूसरे समुदाय से नहीं हुई है, एक ही समुदाय के लोग हैं। घटना वो ये हुआ था कि यहाँ सेल का ज़मीन है, ये इसको घेर रहा था, तो हमने बोला ये सेल का ज़मीन तुम लोग क्यों घेर रहा है? तो वो लोग सुबह दिन में कुछ नहीं किया, रात में फिर उसके बाद सबको एक जगह झुंड बनाया, डंटा फंटा लोहा का तलवार वलवार लेके और फिर खड़ा था। वो लोग उस घर में और झमेला चल रहा था, समझाने किया था कोई, वहाँ पे गया तो उसका झमेला मेरा घर पे आ गया। मेरा भाई का गाड़ी का शीशा उसका फोड़ फाड़ दिया, मेरा घर में ईटा पत्थर पूरा चला दिया गया है। पूरा खटाल का आदमी लोग था। ये कौन लोग थे? ये खटाल के शंकर यादव था, उत्तम यादव था, उत्तम मंडल था, उत्तम यादव था, दाबो यादव था, लक्ष्मण यादव था, शंकर यादव था, बहुत सारे थे, बच्चा कच्चा सब था उधर का, जो हमारे घर में पूरा हमला किया। फिर भी कितना आदमी लोग? कम से कम 150 आदमी थे। एक घर को दूसरा, मैंने जैसे लगता है हिंदू मुस्लिम का राइट करवा दिया। और ज़्यादा कोई जख्मी भी हुआ? हाँ, मेरे भाभी के पूरे आँख फट चुका है,
मेरा भाई का मुंह फट गया, मेरा माथा फट गया मेरा भाई का। मेरा भी यहाँ लीजिए सीने चोट लगा है, यहाँ पाँव में लगा है, यहाँ पे ला लीजिए है। जख्मी मोटा मोटा 3 लोग हुआ, 4 लोग हुआ। 4 लोग हुआ। मैंने घर के सबके लगा है, छोटा बड़ा ज़्यादा जख्मी मेरे भाभी हुए जिसका आँख फट गया है, भैया फोटो लिए हुए हैं। और मेरा प्रशासन आने पर भी पत्थर चला है। तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग को बस हम लोग को सेफ्टी चाहिए, हम लोग इन लोगों से बचना चाहिए बस। हम लोग एक घर उधर पर 2 घर, हम लोग काहे लिए ये झमेला इतना बड़ा है? हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। हम तो अपना घर में थे, हो आवाज़ सुने तो बाहर निकले, डंपर तोड़ रहा पूरा, ईटा पत्थर रड से एकदम पूरा शीशा उसा सब चूर कर दिया। इस मैदान में बैठा रहा लड़का लोग, उन लोग को भी जाकर माथा उठा फाड़ दिया, लेडीज़ को मार के माथा फाड़ दिया। तो काहे ये झमेला माने काहे हमको कुछ समझ में नहीं आता। कौन लोग था ये सब? खटाल का जितना ज़्यादा लोग है सब, माने कोई कारण बिना कारण का ऐसे कोई कारण नहीं। हमको जो सुनने में जे आप ये थे, हमको कुछ मालूम नहीं। शाम को आए, घर में बैठे थे, दराज सुने तो हम बाहर निकले, वही सब देखे थे। फिर भी कितना आदमी लोग आते हैं? कम से कम 50-60 गो लोग था, है ना। खडाल का टोटली आ गई। तो कोई इंजर्ड? मैंने 12 बरस से लेकर के 18-20 बरस तक था, आदमी सब था। इसमें कोई इंजर्ड वगैरह हुआ है क्या? हाँ, माथा में लगा, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया है। कितना आदमी का? 3-4 आदमी को साथ लगा है, हम तो देखे नहीं, सुने। एक तो लेडीज़ को लगा यहाँ, एक तो लड़का को माथा में लगा, पैर में लगा है। आपका नाम? छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लोन मेले का आयोजन किया गया। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और HDFC बैंक के साझा प्रयास से लोन मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा ने कहा कि इस मेले के आयोजन का मकसद यहाँ के व्यापारियों को बेहद सुलभ ब्याज पर लोन की व्यवस्था करवाना है ताकि वो अपना व्यापार खड़ा कर सकें, खुद भी स्वावलंबी हो सकें और शिल्पांचल के आर्थिक विकास में भी भागीदार बन सकें। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से HDFC के सारे पदाधिकारियों का हम लोग यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इस तरह से आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और HDFC में एक ऐसा बंधन हो जिससे कि आगे हमारे व्यवसायियों को भी सुविधा हो और बैंक को भी हम लोग लाभ दे सकें, जिससे उन लोगों का भी ये बिजनेस ही है। बैंक एक बिजनेस संस्था है। अगर हमारे व्यवसायी को लोन मिलता है तो उनसे जो बैंक को आय होती है वो भी हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी और हमारे व्यवसायियों को भी लोन सहज तरीके से मिलेगा, ये भी हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी। तो इसलिए मैं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उन सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह का कैंप आज बहुत ही ज़्यादा सफल हो। धन्यवाद। कोल इंडिया के विभिन्न फैसलों के खिलाफ आज कुनस्तोड़िया एरिया ऑफिस में CMSI C2 की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि जिस तरह से कोल इंडिया द्वारा BCCL, ECL और CMPDI को अलग करने की साजिश रची जा रही है उसे बंद करना होगा। इसके साथ ही JBCCI के 11वें वेतन आयोग को लागू करना, CMPDDIL और BCCL के 25% शेयर बिक्री के प्रस्ताव को रद्द करने, कोल इंडिया के 160 खदानों को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश को बंद करने की मांग की गई। इसके साथ ही ठेका श्रमिकों को हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतन देने की भी मांग की गई। यहाँ अपना वक्तव्य रखते हुए संगठन के विभिन्न नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर मसम्मत की। उनका कहना था कि जिस तरह से कोयला उद्योग के निजीकरण की कोशिश की जा रही है वो शर्मनाक है और इससे कोल इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 11वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की जा रही है उससे श्रमिकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। बात सही है। ये देखिए साथी, आज हम लोग यहाँ पर सेक्रेटरीओ कार्यालय के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक चीज तो हम लोग को समझ में होगा,
लड़ाई हम लोग को करना है नीति के खिलाफ। आखिर जिस नीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार, बीजेपी का सरकार, उनके कैला मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी और इसके द्वारा जो नीति अपनाया जा रहा है, हमारा कोयला उद्योग को देश का सबसे बड़ा महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारे कोयला मजदूरों को जो वेतन बोर्ड उसको कैसे निलंबित किया जाए, यही सारी चक्रांत जो हम लोग को साफ नजर आ रहा होगा। ये हमारे इस नीति के खिलाफ हमारे संघर्ष है। अगर नीति के खिलाफ जो सरकार, अगर मजदूर विरोधी, उद्योग विरोधी अगर नीति इख्तियार करने के लिए उतारू है, तो हम भी इसके खिलाफ संघर्ष को बरकरार रखने के लिए हम भी तैयार हैं। हमारे संघर्ष को मजबूत करने के लिए हम भी तैयार हैं। वो जैसे औजार चला रहा है, हमारा लड़ाई संघर्ष उसका औजार को परास्त करेगा, उसका नीति को परास्त करेगा। ये लड़ाई नीति के खिलाफ है। ये चीजें हम लोग को समझने होगा। बिजली बोलने का टाइम में बोल रहा था, सही बात बोला। जब वाणिज्यिक उत्खनन के लिए सीएमएसपी एक्ट में संशोधन करके 2015 में लाया गया था, हम बोल रहे हैं कि ये नीति इख्तियार किया जा रहा बीजेपी सरकार की ओर से, लेकिन उसके समर्थन में हमारे राज्य में जो टीएमसी सरकार चल रहा, उन लोग को द्वारा समर्थन किया जा रहा है। अब देखिए, उसी टाइम का रिकॉर्ड उठा के हम लोग तो जानते हैं, लाल झंडा वाला लोग गलत बात नहीं बोलते हैं। उसी टाइम का जब ये कानून लोकसभा में पारित हो रहा था, अजीब सा बात है, सौगत राय जी इसके खिलाफ में बात बोले, कल्याण बनर्जी बात में समर्थन कर दी। इतनी नहीं है। आज इसीलिए केंद्रीय सरकार कोयला मंत्री कोल इंडिया प्रबंधन को जो बनाने में जो उदंडता, इसका मूल कारण है उलंग रवैया, मजदूर विरोधी, उद्योग विरोधी रवैया को इख्तियार कर रहा है, लेकिन इसका समर्थन। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।